Go to. Namaskar. Good afternoon, everyone. Once again, welcome to each one of you in this GST workshop organized by CASA. As we all know, Hemang Singla ji is there, very active member from our North Region, Punjab, Singroor branch committee members. Welcome to you, Sigant bhai, Hemang bhai. मैं आप सभी का वन से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीएसटी हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है। जितना भी डिस्कशन किया जाए उतना कम है। आज उसी सीरीज में एक अनदर जो हमारी लेटेस्ट जीएसटी में चेंजेज हुए थे 2.0 जीएसटी नेक्स्ट जेन जीएसटी जिसे कहते हैं कहा जा रहा है भाई गवर्नमेंट, और जीएसटी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। किसी की कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स, और यू कैन लेटर ऑन वी कैन डिस्कस बाय अनम्यूटिंग देमसेल्फ। बट हमारी प्रयास रहेंगे कि जैसे कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्कशंस है, वो एक हेल्प एक फ्रूटफुल रहे। तो with this, Siddharth Pathak ji, about Siddharth Pathak ji, very well known speaker and assisted with many books, author of many books. So about him, he's a fellow member of ICI and life member of this CASA organization. So welcome to you, Siddharth ji, at your own platform. So with this, over to you for your deliberation. हिमांश जी, मैं आपको भी को होस्ट बना रहा हूँ। अगर आपकी भी जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, डिस्कशन हो, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। ओवर टू यू सिद्धार्थ जी। Thank you, Sumit ji. Uh, Thank you for keeping inviting me on a regular basis for sharing my learnings and thoughts with the audience. Today's topic: GST reforms, changes that have come after the speech given by the Honorable Prime Minister on 15th of August from the ramparts of Red Fort, and then subsequently 56th GST Council meeting was held, and the changes became very popular. The changes became, I can see that Ankit ji has also joined. So he is with Sorry for us. delay. Sorry for Rajiv delay, Nigam Siddharth ji. sir, I I welcome can, you. there is no issue. आप कहीं कोर्ट से आ रहे हैं शायद वापस, कोई हेयरिंग करके आ रहे हैं। हाँ जी, I will continue. हाँ जी. So this, why it is being called as GST 2.0 or GST reform, because the changes that have been done by the last council meeting, 56th council meeting, they are applicable to the masses, and majorly because there have been huge reductions in the tax rates, huge concessions in the tax rates applicable to various goods as well as services. But for this session, I will not, because I believe that most of you have already gone through what the rate reductions are. So I will not spend much time on the rate reductions per se. As professionals, we also have to see that there are changes in the law which have been implemented with effect from 1st of October 2025, which were enacted by the Finance Act 2025 but yet to be notified. So they have been notified with effect from 1st of October 2025. So apart from rate changes, yes, rate changes is predominant, and that is why it has caught attention of the trade and industry and the masses, because uh, particularly prior to 22nd of September 2025, it was called as a 4-tier structure, 4 slab rate structure, wherein we had 5%, 12%, 18%, and 28%. Now they have done away with 12%. All the goods which were earlier taxable at 12%, majority of them have been brought to 5%. Some of them have even been exempted in entirety, such as ultra high treatment milk, or breads, roti, paratha, Indian breads, pizza bread, or in fact packaged paneer, packaged and labeled paneer, which was earlier taxable at 5%, has been brought under exemption. So various rate rationalization has been done. 12% goods moving to 5%, some even moving to exemption. 28%, those goods which attracted 28% tax rate
majority of them have moved to 18%. Only the luxury goods, what the government considers as luxury goods, automobiles, and even large automobiles, not small cars, but big cars, as per the Motor Vehicle Act, have gone to 40%. Sin goods have gone to 40%. In those goods also, there is a reduction in rate because the effective tax rate, including compensation cess, was higher. It was 50%. In some cases, it was even up to 60%. So once the compensation cess has been done away with, they will also come to 40%. They have, in fact, they have come to. In if I talk about automobile sector, small cars up to 1200 cc and 4000 length of petrol, or up to 1500 cc of diesel and 4000 of length, have been brought down to 18% from 28%. And cars which are exceeding this capacity were earlier taxable at 50%, 45 to 50% tax incidence was there on luxury cars or on station wagons, SUVs, including cess. They have been brought down to 40%. That is why we saw on our social media platforms, Instagram, Mercedes, Audi, BMW, all these coming up with their ads, that cars even priced at 2 crore or 3 crore, they saw a significant reduction in price. So tax rates have reduced at the high end level as well in automobile sector. So coming to my point, 12% done away with, all goods being brought to 5% or some even exempted. 28% goods coming down to 18%. Some have gone to 40%, and this rate rationalization has been done. So now we are having a standard rate of 18%, a merit rate of 5%, and a demerit rate of 40%. Three slab structure is there. Of course, apart from this, there are other rates as well. There is still a rate of 3% on gold jewelry, gold ornaments, or 0.25% on diamond, or 1.5% on some other precious stones and like that. But majorly, there are only three rates: 5%, 18%, and then there is demerit rate of 40%. So this was all the rate rationalization that has been done by the government. And what they have done is they have issued notification 9/2025 central tax rate, which has entirely substituted the old rate notification 1/2017 central tax rate dated 28 June 2017. So earlier they used to amend that principal rate notification 1/2017, but looking at the rationalization, huge substantial rationalization reshuffling going on, they have issued completely new notification, substituted the old notification, and from 22nd of September 2025, you only need to see 9/2025 central tax rate dated 17th of September 2025. The old notification has gone. Likewise, with respect to exemption on goods, they have issued 10/2025, which has substituted 2/2017 central tax rate dated 28 June 2017. So for goods, they have brought in entirely new notification, and you only need to see those two notification for goods: 9 for tax rate and 10 for exemption, which are wholly exempted. While looking for exemption, yes, under 10/2025, all the goods that are there that are wholly exempted. But there are some categories, even in rate notification, which attract nil rate. So while looking for exemption, you must be cautious about that. Now, this was about the goods. Coming to services, they have amended the original notification only because the changes are not wide. So they have amended the old notification 11/2017 by a notification. The number of that notification is this is 15/2025 सेंट्रल टैक्स रेट. तो जो सर्विस इंडस्ट्री के लिए उन्होंने पुरानी नोटिफिकेशन को ही अमेंड किया है.
सर्विसेज इंडस्ट्री में अगर बात करें तो जो प्रीडोमिनेंटली चेंज आया है वो होटल अकोमोडेशन सेक्टर पे आया है, जहां पे कि होटल अकोमोडेशन per room per night tariff is up to 7500. What the hotel is charging you is up to 7500 for a room night. Then it is brought down from 12% to 5%. But here there is a catch that input tax credit is not available for the goods and services used by the service. I think I think there was some issue with my network. So I hope now my voice is audible to everyone. यस यस Yes. सिद्धांत जी, नाउ परफेक्ट। So वी वर टॉकिंग अबाउट होटल अकोमोडेशन। तो वहां पे जो होटल्स इस तरीके से हैं जहां पे दोनों कैटेगरी ऑफ रेट्स एप्लीकेबल हैं, तो उन्हें 17(2) में रूल 42-43 की वर्किंग करनी होगी। यहां पे जो होटल प्रेमाइसेस में एक और इशू क्रिएट होता है कि the hotel premises which are having a room rate of above 7500 of any particular room, then their restaurant is taxable at 18%. Their rooms which are getting sold at above 7500 are taxable at 18%, but the rooms which are below 7500 are getting taxed at 5%. So proportionate input tax credit reversal would be required. Then yes, you can ask your queries. Let me just complete this entry of hotel accommodation, and then you can ask your query. Someone will unmute you. So those those premises where none of the rooms was getting sold at 7500, they were given an option 6 months back, somewhere in early 2025, that they can declare their premises as specified premises, and in their cases, even their restaurant they can discharge tax at 18%. तो उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि जो रूम है उनके वो बिलो 7500 12% पे टैक्स चार्ज होता था, आईटीसी मिलता था। रेस्टोरेंट पे 5% जीएसटी था, आईटीसी नहीं मिलता था। तो उन्हें एक ऑप्शन दिया गया कि आप अपने रेस्टोरेंट की सेल पे 18% जीएसटी चार्ज कर लो, डिक्लेयर करके कि आपकी प्रेमाइसेस स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। बट अब उनके पास फिर से एक प्रॉब्लम आ गई कि जो उनकी प्रिंसिपल रूम की सप्लाई थी वो 5% विदाउट आईटीसी की हो गई। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो ऑप्शन दिया गया था वो एक तरीके से रिडंडेंट हो गया। कोई होटल प्रीमाइसेस ये नहीं चाहेगा कि रेस्टोरेंट पे 18% जीएसटी विद आईटीसी ले, और रूम कैटेगरी उसके पास वो वाली है जहां पे कि आईटीसी मिलेगा नहीं, 5% तक की है। तो ये थोड़ा सा होटल अकोमोडेशन इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली एक रीशफलिंग हुई है, जहां पे कि उन्हें 17(2) को बड़ा ध्यान से देख करके चलना पड़ेगा। इसी तरीके से सर्विस इंडस्ट्री में एक और जो चेंज हुआ जो मासेस को एप्लीकेबल है, आपके जो जिम्स हैं, स्पा है, सोना है, और योगा सेंटर्स हैं, इनको 5% पे लेके आ गए विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर कोई पार्लर है जिसने इनपुट्स प्रोक्योर किए हुए हैं और वो इनपुट्स हैं इन लाइंग इन स्टॉक एज ऑन 22 September 2025, बट देयर सर्विसेज विल बी टैक्सेबल एट 25% विद इफेक्ट फ्रॉम 22 September, तो वो जो इनपुट्स इन स्टॉक है उनका प्रोपोर्शनेट क्रेडिट उन्हें रिवर्सल करना पड़ेगा। सेक्शन 18(4) may get applied to them, because once you come to supply with 5% without ITC, it is treated as an exempted supply. Section 17(2) gets applicable. आपको अगर आप एक ऐसी कैटेगरी में भी है जहां पे 18% भी लगता है और 5% भी लगता है, तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट की आपको रिवर्सल करनी पड़ती है। तो वहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जो इनपुट्स एज ऑन 22 September मेरे पास हैं और जो कंज्यूम नहीं हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक शैम्पू की बॉटल है या कलर की बॉटल है जिसको मैं 18% पे प्रोक्योर करके लाया और मेरे को क्रेडिट मैंने लिया हुआ है, बट 22 सितंबर के बाद मेरी सर्विस क्योंकि 5% पे टैक्सेबल हो गई, तो अब
आउटपुट तो मुझे 5% पे विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो मुझे वो यूज करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वहां पे आंसर इज कि जितना पोर्शन आप ये शो कर सकते हैं कि जो कंज्यूम हो गया फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज अप टिल 21 सितंबर वो मिलेगा, बट बियॉन्ड 22 सितंबर वो आपको नहीं मिलेगा। वो वर्किंग एक उन्हें करनी पड़ेगी। सर्विसेज इंडस्ट्री में अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करूं तो फर्स्ट टाइम, पहले एक बार कॉल ले लेते हैं, सॉरी क्वेरी ले लेते हैं। तो कह रहे हैं आज। हाँ जी, हाँ जी, सर हिमांशु मेरा जी। डाउट ये है कि जो होटल इंडस्ट्री को रूम रेंट जो लेस देन 7500 है उस पर रेट चेंज हो गया, राइट? अब उनको रिवर्सल करना पड़ेगा रूट 42 43 का। सर उसके लिए जो अब हमने जो रिवर्सल करनी है वो आफ्टर 22 सितंबर की करनी है सेल लेके। मतलब 9 दिन की सेल को बेस मानना है और 9 दिन के इनपुट को बेस मानना है हमने फॉर रिवर्सल, क्योंकि रेट तो चेंज उसके बाद हुआ है। रेट 22 सितंबर से चेंज हुआ है। हाँ जो जी। 22 सितंबर के बाद की प्रोक्योरमेंट होगी वो हाँ तो जी। आपको प्रोपोर्शनेट करनी ही है, हाँ जी। हाँ जी। और आपको मंथली बेसिस पे करनी है। फिर हाँ रूल जी सर। 42 लेटर सेज दैट कि आप उसकी कैलकुलेशन एनुअली करें, और इंटरेस्ट ठीक है। इंप्लीकेशन केवल 1 अप्रैल ऑफ राइट द सर। फॉलोइंग फाइनेंशियल राइट ईयर के सर। बाद आएगी। तो हाँ कोई जी। इंटरेस्ट इंप्लीकेशन नहीं है। बट क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो इनपुट्स 22 सितंबर से पहले प्रोक्योर करके फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है, लेकिन वो अभी सर्विस प्रोविजन के लिए कंज्यूम नहीं हुए, उनका हाँ क्या जी। होगा? वहां पे सेक्शन, जो ये नोटिफिकेशन है 11, आपकी 11/17, इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने रेफर एक्सप्लेनेशन 4 कह रखा है। एक्सप्लेनेशन 4 यही कहती है कि अगर एक सप्लायर दो तरीके की सप्लाईज कर रहा है, वन इज 18% एंड वन इज 5% विदाउट आईटीसी, तो उसको प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना है अंडर सेक्शन 17(2). बट वो एक्सप्लेनेशन 18(4) को रेफर नहीं करती है, जो आपके क्वेश्चन को आंसर करता है कि 18(4) में ये क्लॉज है कि अगर किसी की पर्टिकुलर सप्लाई फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो जी। इनपुट्स लाइंग इन स्टॉक का क्रेडिट रिवर्सल करना पड़ता है उसे राइट सर। प्रोपोर्शनेटली। राइट सर। और ये जो 5% विदाउट आईटीसी की कैटेगरी है, इसको सेक्शन 17(2) के लिए तो नोटिफिकेशन कहती है एग्जेम्प्ट माना जाएगा, बट 18(4) के लिए वो साइलेंट है। तो ये लेक्यूना है लॉ में कि जो मेरा इनपुट एज इन, जो मैं खरीद के ले आया हूं 22 सितंबर से पहले, उसके क्रेडिट का क्या होगा? लॉजिकली वो प्रोपोर्शनेटली रिवर्सल होना चाहिए, बट टेक्निकली लॉ में प्रोविजन नहीं है। ठीक है सर। तो उसको आप लिटिगेट कर सकते हो, बट 22 सितंबर ऑनवर्ड्स जो आप इनपुट प्रोक्योर करके ला रहे हो उस पर 17(2) लग जाएगा, और वो आपको प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना ही पड़ेगा। मतलब हमें देखना पड़ेगा कि कितना हमारा इनपुट आफ्टर 22 सितंबर आया है और 9 डेज के रिवर्सल के यस, लिए। तो ये भी विच इज, बहुत हाँ, हार्ड है। विच इज, हाँ, जितना वो तो आपको मंथ की अपनी सेल देखनी है 22 सितंबर के बाद की, या अक्टूबर की हाँ बात जी। करें हाँ तो जी। जो अपने रॉ इनपुट इनपुट सर्विसेज अक्टूबर में प्रोक्योर किए, और अक्टूबर का जो आपका टर्नओवर है 18% विद आईटीसी वो और तो हो 5% जाएगा। विदाउट आईटीसी, वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक बट है सर। यस, एक पीरियड के लिए प्रॉब्लम आएगी। यस सर, थैंक यू। Moving forward, are we having any other query? Good afternoon, sir. Supply made to government department holding only GST TDS registration. Supply made to such bodies covered under B2B supply or B2C supply. Portal allow us as B2B e-invoice also allowed to generate B2B supply. Sir, this there is a circular on this. It will be considered as a B2B supply. Prior to that circular, उसको B2C supply माना जा रहा था, but government came up with a clarification कि अगर एक डिपार्टमेंट केवल टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, उसको भी आप बी टू बी की सेल में ही रिपोर्ट करेंगे, उसका टैन नंबर रिपोर्ट करके। ये क्लैरिफिकेशन बोर्ड दे चुका है। आई थिंक इट परटेन्स टू 2024 में कभी ये क्लैरिफिकेशन आई थी, बट आ चुकी है। As per proviso 2 of section 34, department issued CN without disallowing CN adjustment with reason that no reduction in our output tax liability due to incidence of tax on such supply has been passed. सर सेक्शन 34 को मैं डील करूंगा प्रॉपरली, तो उसको, इस क्वेरी को वहां पे एड्रेस करूंगा मैं आपकी। आई थिंक देर इज नो अदर क्वेरी। कमिंग टू द सर्विस इंडस्ट्री, this I am highlighting because this has happened for the first time since service tax was brought into picture, brought in force. Since आज तक कभी भी कंसेशनल रेट किसी भी सर्विस पे दिया गया तो आईटीसी डिनाई किया जाता था। अब जो नोटिफिकेशन आई है सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, उसमें कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनमें उन्होंने ये कहा कि 5% जीएसटी विद इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा।
ऑफ कोर्स जो हमने अभी तक डिस्कस करी, होटल अकोमोडेशन या योगा सेंटर और स्पा, फिजिकल वेलबींग सर्विसेज, ये सब तो विदाउट आईटीसी हैं। बट जॉब वर्क सर्विसेज जो कि 5% में रेट पे लेकर के आए हैं, वहां पे उन्होंने कहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कंप्लीटली एडमिसिबल रहेगा। ऐसे ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गुड्स ट्रांसपोर्ट कैरियर, वहां पे भी 5% विद आईटीसी आपको मिलेगा। तो इस तरीके की कुछ सर्विसेज हैं जहां पे ये देखने में आया है कि कंसेशनल रेट के बावजूद उन्होंने आईटीसी को पूरा अलाउ किया है। सो दिस वाज मेजरली विद रिस्पेक्ट टू द रेट रैशनलाइजेशन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। इस पे कई सारे सेशंस ऑलरेडी कासा के प्लेटफॉर्म पे भी हो चुके हैं, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता हूं। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो उसे ले लेंगे। तो जो गुड्स के रेट के चेंजेस हैं या सर्विसेज के रेट के चेंजेस हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस मूविंग फर्दर, जो चेंजेस हैं विच आई वुड लाइक टू डिस्कस। हाँ, एक चेंज जो आया है, लोकल डिलीवरी सर्विसेज, ब्लिंकिट और स्विगी, जिनी, जो आपको सर्विसेज लोकल डिलीवरी या पोर्टर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है विद इन दी स्टेटी, ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड हो रही है, इन सर्विसेज को एग्जेम्पशन के परव्यू से उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। अर्लियर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड बाय एनी पर्सन अदर देन जीटीए वाज exempt. Now they have excluded GTA as well as a supplier who is supplying local delivery through e-commerce, उनको भी एक्सक्लूड कर दिया है। और इसी के साथ साथ सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में इस कैटेगरी को नोटिफाई कर दिया है, मीनिंग देयर बाय द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थ्रू whom these services are being provided will be liable to pay tax if the supplier is not liable for registration. So meaning thereby, if a particular rider is enrolled with Porter for provision of local delivery services, then Porter will pay GST to the government on the amount charged by him from you. आज तक पोर्टर अपनी कन्वीनियंस फी पे तो जीएसटी देता था, बट राइडर की सर्विस फी पे टैक्स नहीं देता था। अब वो भी उन्होंने नोटिफाई कर दी कि पोर्टर उस पर टैक्स देगा, तो आपका इंसिडेंस बढ़ जाएगा जीएसटी का। So this was the amendment with respect to local delivery services. I think there are queries which are coming with respect to hotel category. IGST on custom duty is expense or tax. Sir, IGST on custom duty is available as input tax credit to you. Go and read section 2, clause 62 of the CGST Act, which defines what is input tax and what is input tax credit. In that definition of input tax, IGST paid while obtaining clearance from customs is admissible as an input tax credit. तो इसमें कोई डाउट नहीं है। Please explain GST change in post sale discount. Yes, this I will deal in detail when I will come to circulars. This is there as part of agenda. That is why I am moving bit fast with respect to rate changes. For the hotel industry declaration filed for the whole year for 25-26 on portal, now the hotel wants to withdraw such declaration. Is it allowable? आप ये कहना चाह रहे हैं अश्विन सर कि हमने स्पेसिफाइड प्रमाइसेस की डिक्लेरेशन ले फाइल कर दी और रेस्टोरेंट कैटेगरी में 18% जीएसटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, 21 सितंबर तक रूम पे 12% डिस्चार्ज कर रहे थे, बट 22 सितंबर ऑनवर्ड्स मेरी रूम को 5% कर दिया, तो क्या अब रेस्टोरेंट के लिए वापस आ सकता हूँ 5% पे? देर इज अ रिस्ट्रिक्शन। आप जो डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं दैट इज फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। अब ये प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम पोज कर दी है गवर्नमेंट ने आपके लिए, पर्टिकुलरली होटल इंडस्ट्री में, ये बार बार रीशफलिंग करके। आई थिंक दी सम रिलैक्सेशन शुड कम सून लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर इशू। ये जेन्युइन एक इशू है जो क्रिएट हो रहा है, बट एज ऑन डेट यू कैन नॉट विड्रॉ लीगली। वो आपके ऊपर उस जिस नोटिफिकेशन में वो आपको अलाउ करते हैं उसी में लिखा हुआ है कि आप उसको फॉर दी फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं कर सकते, विद इन दी फाइनेंशियल ईयर विड्रॉ नहीं कर सकते आप। For tobacco products, cess would continue till any further. Yes, for tobacco products, you are right that until the financial obligations of the central government towards the state government under the Compensation Cess Act are met, and the principal amount along with interest is discharged fully by the central government, the cess will continue on the tobacco related products. Zarda, manufactured tobacco, unmanufactured tobacco, tobacco leaves,
or products like these, the cess will continue. They will continue at the same rate. Even after 22nd of September, they are applicable, leviable to 28% GST plus the applicable cess. Barring these products, all the other products which were otherwise leviable to cess, that have been done away with. Now the cars are taxable at flat 40% and not leviable to cess. The Mrs. Nirmala Sitharaman had said in the press release that they will try to meet their financial obligations and get done away with this cess on the tobacco products by 31st of December 2025. But there is no official word on it. So let us see. When I'm discussing this, another issue which I would like to highlight is those who are pertaining to automobile industry. 21 सितंबर तक मैन्युफैक्चरर से जो गाड़ियां परचेज करी उन पे सेस लग के आया, 22 सितंबर से सेस खत्म हो गया। सेस का यूटिलाइजेशन सेस के अगेंस्ट ही मिल सकता है। तो अब उस सेस का, देर आर डीलर्स हु आर हैविंग एक्यूमुलेशन ऑफ मोर देन 10 करोड़ 20 करोड़ इन अकाउंट ऑफ सेस, जिन्होंने पहले ही बल्क में परचेज कर रखी थी और सेल नहीं हुई जब प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस कर दिया, और 22 सितंबर के बाद जब सेल हो रही है तो सेस है ही नहीं, तो वो उस सेस को कैसे यूटिलाइज करेंगे? as on date there is no clarification. Legally they cannot utilize it. As on date they cannot utilize it against tax until a clarification comes, or in fact not even a clarification, but they will have to issue a some sort of a removal of difficulty order or something like that. Circular will not be able to resolve this issue, because the act restricts the utilization of cess against any other amount. हमें ध्यान होगा, जो लोग सर्विस टैक्स एक्साइज में प्रैक्टिस करते थे, एजुकेशन सेस और एसएसईसी जब एबॉलिश किया गया था तो सरकार एक अलग से स्कीम लेके आई थी कि आप अपने ईसी के बैलेंस को सर्विस टैक्स के अगेंस्ट, एक्साइज ड्यूटी के अगेंस्ट यूज कर सकते हो अप टू अ पर्टिकुलर डेट। इस तरीके की स्कीम उन्हें लाके देनी होगी, अदरवाइज दिस विल बिकम अ ह्यूज कॉस्ट फॉर द डीलर्स एंड टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। With this, I think I will move forward until next query comes. अब देखिए, apart from the rate rationalization, what has happened? With effect from 1st of October 2025, all the provisions which were enacted by Finance Act 2025, हमारे जीएसटी में क्या है, इनकम टैक्स में क्या है कि बिल आता है, फिर वो एक्ट बन जाता है, तो असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल हो जाता है। जीएसटी में एक थर्ड स्टेज है, बिल आता है, फाइनेंस बिल, एक्ट बनता है प्रेसिडेंट के असेंट के बाद, लेकिन वो उस दिन इंप्लीमेंट नहीं हो जाता। There is a provision under section 1 which gives power to the government, power to the council to notify a date from which the provision will be effective, which will from the date the council notifies that provision to be effective, it gets applicable. तो काउंसिल ने जितने भी प्रोविजंस फाइनेंस एक्ट 2025 में इनैक्ट किए उनको नोटिफाई कर दिया है दैट दे विल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of October 2025. I will go through some of these provisions which are important. फाइनेंस एक्ट 2025 में जो पहला क्लॉज था, क्लॉज 121, क्लॉज 121 सब क्लॉज 2 dealt with amendment in definition of local authority. So there was some ambiguity in the definition of local authority, and there are various exemptions which are given when services are supplied by local authority or services are supplied to local authority. Due to ambiguity in definition, there were uncertainties whether the exemption will be available or not. So they have made some technical amendment in the definition of local authority in clause 69 of section 2 of the CGST Act. So that is applicable with effect from section 2. If it is relevant for you, you must go and revisit the definition of local authority. That is applicable with effect from 1st of October 2025. I'm not going into the definition because it is technical and not applicable to the masses. Then the other clause which has been notified with effect from 1st of October 2025 is subclause 3 of clause 121, which deals with the definition of unique identification marking. This is a new definition introduced under section 2 of the CGST Act under clause 116A, unique identification marking. Basically क्या है कि government is
has introduced a provision section 148A of the CGST Act, track and trace mechanism. तो ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को इस क्लॉज के अंदर डिफाइन किया गया और उसे नोटिफाई कर दिया गया 1 अक्टूबर 2025 से। अभी रूल्स इसके नहीं आए हैं, बट नोटिफिकेशन नहीं आई है कि बिकॉज द गवर्नमेंट इज हैविंग द पावर टू नोटिफाई द गुड्स टू विच दिस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। सो we believe that it will be applicable to products such as cigarettes, tobacco products, wherein they will mandate that the supplier is required to affix a unique identification number or a barcode or something like that on the product, so that the government can know its location on a real-time basis, its storage location on a real-time basis. And because there have been various frauds in the cigarette industry wherein people were claiming bogus refunds, declaring them as exported to UAE and so on, while the goods were dumped. No exports were being done. The goods were sold in the cash market within India. So to curb these practices, they have come up with a track and trace mechanism and for that they have introduced a new definition of track and trace mechanism, unique identification marking, under section 2 clause 116A, and subsequently they have also introduced a whole new provision under section 148A, which is special procedure of track and trace mechanism applicable to goods to be notified by the government in a future date. Now, the another amendment which is effective from 1st of October 2025 is amendment in section 12 and 13 of the CGST Act with respect to vouchers. Now, section 12, what does it tell? It tells the time of supply of goods, and section 13, time of supply of services, when the tax will become due. So in case of vouchers, the government understood that voucher is neither a supply of good nor a supply of service. It is basically an actionable claim, an instrument which can be utilized for settlement of consideration. So last year, 2024, they had come up with a circular 243 to explain that supply of voucher is neither a supply of good nor supply of service and hence not leviable to tax. But the time of supply provision had a clause, specific clause with respect to supply of vouchers as to when the tax would be due. So effectively that provision would have had become redundant by that circular, but now they have omitted that clause. So this is the amendment. Then the next amendment is in amendment section 17(5) clause D. Now, many of you, almost all of you would be aware about the judgment of Safari Retreats. What was the issue? Plant or machinery in clause D, plant and machinery in clause C, and Supreme Court, distinguishing both, gave a relief that if a particular immovable property qualifies as plant, then input tax credit of construction will be available. So this issue had started from Madras High Court, then going up to Supreme Court. But then the government has nullified that judgment by way of doing a retrospective amendment in section 17(5) clause D. They say that from 1st of July 2017 itself, this is one of the amendments which is applicable retrospectively with effect from the 1st of July 2017, which says that the words plant or machinery will be read as plant and machinery since day one of GST. So they have nullified that judgment of Honorable Supreme Court, while the petitions are already there before the Supreme Court if that retrospective amendment is valid or not, but that time will tell. But for now, the government has nullified that judgment. Having said that, if time will permit, I will discuss a particular paragraph of this judgment with you, which still allows credit in certain scenarios of leasing business, which I will discuss if the time permits later. Then the next amendment, which has been made effective from 1st of October 2025, is in section 34, which regarding which a query has also been posted. देखिए क्या है section 34 क्या है? क्रेडिट नोट डेबिट नोट को डील करता है. आप सेक्शन 34 में एक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं इन 4 scenarios if the value charged in the invoice was higher than the value that was supposed to be charged, if the rate of tax charged in the invoice was higher than the rate of tax supposed to be charged, if there is a deficiency in provision of services, if there is a case of return of goods, or if there is some deficiency in goods. In these 4 situations, you can issue a credit note under section 34
and claim adjustment of the GST paid earlier at the time of issuing the invoice. But once you take adjustment of GST liability discharged earlier by reporting a credit note on the GSTN portal, a clause of unjust enrichment used to exist in the matching provisions under Section 40. But that provision was omitted by Finance Act 2023, as a result of which there was no provision of unjust enrichment with respect to these credit notes. भाई आपने इनवॉइस रेज किया जब कस्टमर B2B कस्टमर को, तो उसने क्रेडिट ले लिया उस इनवॉइस का। आपने जब क्रेडिट नोट इशू किया, आपने सरकार से एडजस्टमेंट तो ले ली, क्या ये इंश्योर किया कि कस्टमर ने क्रेडिट रिवर्स किया या नहीं किया प्रोपोर्शनेट? तो ये प्रॉब्लम थी। लीगली ये क्लॉज खत्म कर दिया गया था, और इसलिए इस क्लॉज को अब री इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन 34 प्रोवाइजो के थ्रू। इस प्रोवाइजो को लाने से पहले गवर्नमेंट ऑलरेडी एक सर्कुलर ला चुकी थी, सर्कुलर 212 आई बिलीव, विच हैज रिसेंटली बीन विदड्रॉन। वो सर्कुलर ज्यादा फेटल था। वो ये कहता था कि हर केस में जहां पे भी ऑफिसर चाहता है, वो सप्लायर से जिसने क्रेडिट नोट पोर्टल पे रिपोर्ट किया है, उससे वो एक प्रूफ मांग सकता है कि वो प्रूव करे कि रेसिपिएंट ने क्रेडिट रिवर्स कर दिया है। अब आप सब जानते हैं कि जीएसटीआर 1 में जब मैं क्रेडिट नोट रिपोर्ट करता हूं तो 2B में रेसिपिएंट के क्रेडिट नोट इंटीमेट हो जाता है, और उसका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर बाय डिफॉल्ट उस क्रेडिट को रिवर्स कराता है। क्या हमारे पास ऐसे नोटिस नहीं आए जहां पे कि हमारा जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर हमारे क्लाइंट से क्रेडिट का रिवर्सल मांग रहा है क्योंकि क्रेडिट नोट रिपोर्टेड है बाय दी सप्लायर? बट स्टिल दे केम अप विद अ हार्श सर्कुलर कि भाई सप्लायर को रेसिपिएंट की सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इफ द टैक्स एडजस्टमेंट इज अप टू 5 लाख रुपीज, और 5 लाख के बियॉन्ड है तो सीए सर्टिफिकेट लाके देना पड़ेगा। सो दैट वाज अ हार्श imposition which has recently been withdrawn by a circular, saying that the circular is being withdrawn, and since section 34 proviso will already take care of this unjust enrichment clause, we do not need this circular anymore. तो उन्होंने उस सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया है। अब मैं क्वेरी जो है वो डिस्कस कर लेता हूं। आपकी जो क्वेरी थी वो ये है कि अगर आप अनम्यूट करके डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं क्वेरी पढ़ लेता हूं कि एज पर प्रोवाइजो 2 ऑफ सेक्शन 34, सर दिस प्रोवाइजो 2 ऑफ सेक्शन 34 हैज बीन इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of October 2025 only. So if you have been issued SCN prior to that date, then you can take a legal ground that how can you, by referring to a section which has not been implemented as on date, you can issue a SCN. चलिए आगे बढ़ते हैं लीगली। तो ये प्रोविजन ये कहता है कि आपके रेसिपिएंट ने क्रेडिट रिवर्स कर दिया होना चाहिए, अदरवाइज आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो ये आप एज अ सप्लायर, आपकी लाइबिलिटी है ये प्रूव करने की कि रेसिपिएंट क्रेडिट रिवर्स कर चुका है। तो अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करना होगा। तो अब आप बताएं आपकी क्वेरी क्या है। अश्विन सर, आपकी क्वेरी है? हाँ हाँ जी। जी सर। सर इसमें ऐसा हुआ था कि हमने एनएचआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बिलिंग किया था। ठीक है। बाद में रेट चेंज हुआ तो जो पुराना रेट वाला था उसका क्रेडिट नोट हमने इश्यू कर दिया, ठीक है सर। और अभी नया रेट वाला जो था उसका इनवॉइस बनाया। तो अभी सोकोस नोटिस इश्यू किया है कि ये क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट आपको आउटपुट सप्लाई के सामने एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, तो आपको भरना पड़ेगा टैक्स, जबकि वो गवर्नमेंट एंटिटी है, उसका आईटीसी तो लिया ही नहीं है। तो डिपार्टमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या है कि क्यों आपको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी? शो कॉज नोटिस में क्या कह रहे हैं वो आप प्रूव करो कि आपने पास ऑन नहीं किया हुआ है, मतलब यूं आउटपुट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा आपको। सर अगर आपने उसे टैक्स का रिफंड दे दिया था या पेमेंट उसके यहाँ से आपको इफेक्टिवली उतने अमाउंट की नहीं आई, तो इंसिडेंस पास ऑन नहीं हुआ, और अगर हम्म आपने वो सप्लाई B2C में रिपोर्ट करी है, तो रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर तो आपको ये प्रूव करना है कि इंसिडेंस पास ऑन नहीं हुआ। जो प्रोवाइजो नहीं, 2 है उसमें दोनों क्लॉज हैं। B2B में रिपोर्ट किया हुआ था वो सप्लाई को। 10 नंबर पे रिपोर्ट किया हुआ है या रेगुलर हाँ, नंबर पे टेन टेन रिपोर्ट किया? नंबर, 10 नहीं, उसका जीएसटी सर, रेगुलर नंबर है नहीं, 10 नंबर वाले में रिपोर्ट किया हुआ था। तो 10 नंबर पे रिपोर्ट किया हुआ है तो दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि उसने कोई क्रेडिट तो लिया नहीं होगा उसका। या 10 नंबर या में तो हम 3B फाइल करते नहीं है।
तो राइट। फर्स्ट क्लॉज जो सब क्लॉज ए है प्रोवाइजो टू का, उसमें तो आप फॉल करते ही नहीं है। अब सब क्लॉज बी में आपको केवल ये प्रूव करना है कि आपने इंसिडेंस नहीं पास ऑन किया। तो अगर आपने उससे पेमेंट नेट में लेसर टैक्स की ली है, वो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रूव कर सकते हैं, तो देन यू हैव द केस। नहीं, वो नेक्स्ट क्या, वो रेट इंक्रीज वाला इनवॉइस तो रेज कर ही दिया ना हमने उसके सामने, तो पेमेंट उसका रेज वाला ही मिला है इसमें। आपका केस ये है कि एक डेट के बाद, आई थिंक अगस्त 2022 में ये रेट हाँ, 12 वो से 12 18 का कर 18 दिया। हुआ टैक्स वो, हाँ। एचएआई को जो सप्लाई होती थी, तो आपने 12 12% का। का क्रेडिट नोट इशू कर दिया और 18% का नया टैक्स इनवॉइस दे दिया। तो आपका राइट केस तो राइट। वैसे भी फिर ये इसमें तो और भी आर्ग्यूमेंट आ जाएंगे कि मेरी जो कंसिडरेशन है वो मैं चार्ज कर चुका हूँ, डिस्चार्ज कर चुका हूँ 18% जीएसटी पे। मैंने तो प्रोसीजरली 12% को खत्म करने के लिए और सरकार को 18% टैक्स देने के लिए क्रेडिट नोट इशू किया है। तो एक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पे अगर मैंने, मान लीजिए 1 करोड़ की सप्लाई करी है, तो आप 2 करोड़ पे मुझसे टैक्स थोड़ी ले लोगे, एक बार इनवॉइस पे 12% पे और दूसरे इनवॉइस पे 18% पे। पुराने वाले इनवॉइस एग्जैक्टली। का तो मेरे को क्रेडिट नोट दोगे, वो प्रूव हो जाएगा सर। वो हर एक साल में आपको, इश्यू कर रहे हैं नोटिस। हाँ वो लिटिगेट करना है सर। ये उत्तर प्रदेश है क्या? ये गुजरात में है, अच्छा, मतलब यहाँ गुजरात में है। तमिलनाडु में है केस, पार्टी वहाँ तमिलनाडु का है। ओके ओके ओके। और आप लीगल ग्राउंड तो ये ले ही सकते हैं कि प्रोवाइजो 2 टू सेक्शन 34 आप इन्वोक नहीं कर सकते प्रायर टू 1 अक्टूबर 2025। राइट राइट। थैंक यू थैंक जी यू। सर, इन ब्रिक केस नोटिफिकेशन 2/2022 स्टिल एप्लीकेबल 6% रेट विदाउट, यस सर। इन, हाँ, केवल 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे आज भी 12% टैक्स रेट है और वो कंटिन्यू करेगा। उसके लिए नोटिफिकेशन उन्होंने इशू करी है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। 6/2022 के बाद उन्होंने एक फर्दर नोटिफिकेशन इशू करी है। यस, 14/2025। 14/2025 में दे हैव सेड दैट फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, bricks of fossil meals, building bricks, earthen or roofing tiles, they will continue at 12% GST. So 14/2025 central tax rate is relevant for you. If we don't file 3B for 6 months, then GST number is cancelled by department. Then why new rule for pending 3-year GST return? Please explain logic. सर, ये जो 3 साल का आप ये बेसिकली क्या है कि पोर्टल की पोर्टल की एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से ये इन्होंने ब्लॉकिंग की है। फॉर एग्जांपल, आज भी ऐसी एंटिटीज हैं जिन्होंने जीएसटी और 9 पुराने सालों की नहीं फाइल कर रखी, बट उन्होंने 1 3 भी फाइल कर रखी है, तो डिपार्टमेंट सेक्शन 29 में उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकता है। बट आफ्टर 3 इयर्स दे कैन नॉट फाइल दैट 99C। अब जब ये प्रोविजन लाए हैं, तो ये 1 और 3 भी सारी रिटर्न्स के लिए ले आए हैं कि 3 साल के बाद तो किसी भी तरीके से रिटर्न नहीं फाइल हो सकती। आपकी बात ठीक है कि मेरे तो 6 महीने क्रॉस होने के बाद ही डिपार्टमेंट मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, बट देन देर इज अ लार्जर क्लॉज ऑल्सो कि 3 साल के बाद तो एनीवेज फाइल नहीं हो सकती। मान लीजिए डिपार्टमेंट बाद में आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर देता है, आप कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर भी आपकी कोई एनुअल रिटर्न पीछे की ऐसी रह जाती है जो अनफाइल्ड है, तो वो 3 साल के बाद आप नहीं फाइल कर सकते। ये पोर्टल की लिमिटेशन को मे बी प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजन लेकर के आए हैं कि 3 साल बाद आप कोई रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द ड्यू डेट। 14/2025 says 12% tax, but 6% without ITC was as per 2/2022. Okay, you say that in exercise 14/2025, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 9 and subsection 5 of section, the central government on the recommendations of the council hereby notifies the rate at central 6%. Here there is no condition of disallowance of input tax credit, तो यहाँ पे 12% विद इनपुट टैक्स क्रेडिट है। 2/2022, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, गिव मी अ मोमेंट। बिकॉज 2/2022 को उन्होंने सब्सटीट्यूट नहीं किया है, रिसेंड नहीं किया है, तो वो भी इफेक्टिव होगी इफ बाय सम अदर नोटिफिकेशन दे हैव नॉट डन इट।
Right. So now I got the point. Earlier it was 6% effective GST rate, 3% CGST, 3% SGST, subject to no ITC. Now by 14 bar 2025, they had done 12% GST, 6% CGST, 6% SGST with input tax credit. So this is the clarification. I think you were only giving clarity only. Sir, any beneficiary circular with effect prospective or retrospective? Sir, provision is applicable prospectively. They are not required to issue any circular. Section proviso 2 to section 34 is prospective only. At places where they intended to do amendment retrospectively, Finance Act clearly says there are two such situations. One is the amendment in section 17(5) and the other is amendment in schedule 3, which I will discuss with you. So now we have discussed section 34. It is with respect to unjust enrichment. अगर आप जीएसटी क्रेडिट नोट पोर्टल पे रिपोर्ट करते हैं और लाइबिलिटी एडजस्ट करते हैं तो आपको उसकी एडजस्टमेंट तभी मिलेगी जब रेसिपिएंट ने अपना क्रेडिट रिवर्स कर दिया है. ऑल्दो वो आईएमएस में उसे रिपोर्ट हो जाएगा, वो रिजेक्ट करता है तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ ही जाती है एज ऑन डेट. पोर्टल बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट मंथ में आपकी लाइबिलिटी बढ़ा देता है. अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्रेडिट उसका रिवर्स हो ही जाता है. एंड दैट इज द सिनारियो इन टुडेज डेट. अब जो वो रिजेक्शन हो रहे हैं उसके साथ कुछ अपने इश्यूज हैं कि उसने मेरे इनवॉइस को ही एक्सेप्ट नहीं किया था तो मेरे क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर रहा है. पुराना इनवॉइस था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तब आईएमएस था नहीं, क्रेडिट नोट आज रिजेक्ट कर रहा है. तो इन दैट केस इफ यू टेक अ सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम दैट रेसिपिएंट दैट ही हैज नॉट क्लेम द क्रेडिट ऑन द ओरिजिनल इनवॉइस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. आपको अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करनी है इस क्लॉज में. रिटर्न में पोर्टल पे क्या हो रहा है वो आप उसको मैनुअली फिर टेक केयर कीजिए. लीगली आपको अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करना है. If customer to whom we sold has not accepted our credit note despite follow up for last 6 months, what action can we take? सी, यही क्लॉज है कि आप अपनी लाइबिलिटी तभी एडजस्ट कर सकते हैं जब उसने क्रेडिट ना लिया हो या रिवर्स कर दिया हो. अब अगर वो पोर्टल पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बट मैनुअली आपको एक डिक्लेरेशन दे देता है तो देन दैट इज सफिशिएंट. बट अगर वो किसी भी चीज को सुनने को तैयार नहीं है, उसने रिवर्स भी नहीं किया, तो आप फिर एज पर द लॉ यू कैन नॉट टेक दैट एडजस्टमेंट. डिपार्टमेंट आपकी लाइबिलिटी में एड अप करेगा because it is a condition on the supplier that he can take the adjustment only once the recipient reverses that credit. तो गवर्नमेंट उसके डिपार्टमेंट उसके पास तो बाद में जाएगा, पहले आपके पास आएगा आपकी लाइबिलिटी को एड अप कराने के लिए. एज ऑन डेट यही प्रोविजन है. If government party to whom we sold has deducted late delivery charges and paid us less than, should we issue credit note on our own to reduce our GST loss? Sir, late delivery is a deficiency for which you can issue a credit note. Yes. तो आप उसके लिए सेक्शन 34 में लेट ऑन अकाउंट ऑफ लेट डिलीवरी डेफिशिएंसी कह करके एक सेक्शन 34 में क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं. अनजस्ट एनरिचमेंट को आपको प्रूव करना होगा. नेक्स्ट अमेंडमेंट इज अ क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट इन सेक्शन 38. ये सेक्शन बेसिकली जीएसटीआर 2B को गवर्न करता है. तो वहां पे जो पहले वर्ड्स ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट थे, अब उन्होंने स्टेटमेंट कर दिया है, ऑटो जनरेटेड वर्ड्स को डिलीट कर दिया है. दैट इज इट, बिकॉज 2B will not be an auto generated, 2B will be generated based on the action taken by you in IMS. एक क्वेरी और आई थी कि IMS क्या मैंडेटरी है, तो एज ऑन डेट अभी मैंडेटरी नहीं है. एक एडवाइजरी जरूर आई है कि आपको लिमिटेड पीरियड में, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट नोट की अपवर्ड्स अमेंडमेंट इन सर्टेन सिनारियोज, वहां पे आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है कि आप 1 महीने तक के लिए मैक्सिमम पेंडिंग रख सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड नहीं रख सकते हैं. बट आईएमएस पर से मैंडेटरी नहीं है. अगर आप उसको स्किप करके अपनी 3B फाइल करना चाहते हैं तो जो आईएमएस में डेटा है उसी के बेसिस पे 2B तैयार हो जाता है. तो फॉर ईच एंड एवरी इनवॉइस इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू परफॉर्म द एक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन और पेंडिंग एज ऑन डेट. बट लॉ में अमेंडमेंट इनफोर्स हो चुकी है, वो किसी भी टाइम अब इसको कर सकते हैं. Then next is amendment in section 39, again a clarificatory amendment. जीएसटीआर 3B के प्रोविजन में एक अमेंडमेंट है कि जहां पे वो पहले ये कहते थे कि विद इन सच फॉर्म एंड मैनर आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, विच वाज जीएसटीआर 3B. अब उन्होंने कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए, इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन सच टाइम एंड विद सच रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस.
तो जीएसटीआर 3B पे वो आपकी फाइलिंग पे कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, जो वो पहले भी किया है उन्होंने, उसकी लीगल पावर ड्रॉ कर ली है उन्होंने अपने लॉ, बेसिकली जो रूल्स लेके आए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ में क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट कर दी है कि 3B की फाइलिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। अगर आपने वन प्रीवियस मंथ की नहीं, अगर आपने वन फाइल नहीं करी है तो 3B फाइल करने नहीं दी जाएगी। अगर आपके जो नोटिस, सिस्टम जनरेटेड नोटिस हैं जैसे जीएसटीआर 1C, वो जो मिसमैच के रिस्पेक्ट में आते हैं, अगर वो फाइल नहीं करते हैं तो आपको 3B नहीं फाइल करने दी जाएगी। इस तरीके से वो कंडीशंस लगा सकते हैं। So that is a clarificatory amendment in the law. What is the meaning of downward amendment of credit note or invoice? Downward amendment means, for example, you reported an invoice of 1 lakh rupees on GSTN portal to a particular GSTN. Now you are reducing it by 20,000 and saying, आप वो GSTR 1 में एक amendment का option है जहाँ पे आप B2BA में जाकर के 80,000 कर सकते हैं. So this is downward amendment of invoice. Likewise in credit note scenario में भी यही है. Then next amendment which is important is the amendment under section 107. हम में से जो लोग litigation deal करते हैं, section 107 is appeal to commissioner appeal, first appellate authority. So if an adjudication order has been passed under section 73 or 74 or under any other provision of the law, you can file an appeal before the first appellate authority. You can till date, you could have filed that appeal with a pre-deposit of 10% of the tax if the demand is of tax, interest, and penalty. But if the demand order is only of penalty, then there was no requirement of pre-deposit. So there was a lacuna in law. In some cases, bogus invoice cases, the orders are being issued for imposition of penalty only. एक आदमी है जिसने genuinely, फॉर एग्जाम्पल, बोगस सेल करी, तो उसने टैक्स तो अपना पोर्टल पे डिस्चार्ज कर दिया, अब डिपार्टमेंट उससे टैक्स डिमांड नहीं कर सकता, बट 122 सेक्शन सबसेक्शन 1 में फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स की पेनल्टी है, ऑफेंस है, 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट कैन बी डिमांडेड एज पेनल्टी। तो वहां पे वो शोकॉज नोटिस केवल पेनल्टी का होता है और फिर एडजुडिकेशन होती है केवल पेनल्टी की। तो उस केस में अगर अपील फाइल करनी है तो आपको विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 आप अगर अपील फाइल कर रहे हो, पीरियड चाहे पहले का भी हो, तो आपको 10% ऑफ पेनल्टी प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। 1 अक्टूबर से पहले तक ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं था और हमने खुद अपील्स फाइल कराई कमिश्नर अपील पे पेनल्टी ऑर्डर्स के अगेंस्ट विदाउट एनी प्री डिपॉजिट। बट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 जो भी अपील्स फाइल होंगी जिनमें कोई टैक्स की डिमांड नहीं है बट केवल पेनल्टी की डिमांड है, वहां पे 10% ऑफ दैट पेनल्टी हैज टू बी डिपॉजिटेड। So this is the amendment in section 107, and likewise when after the order of the commissioner appeal or the JC appeal you go to the appellate tribunal, तो वहां पे requirement है 20% of the tax in dispute, sorry, additional 10% of the tax in dispute over and above the amount deposited under section 107 while filing an appeal to the commissioner appeal. You have to deposit additional 10% of the tax in dispute. पहले वो 20% था बट 1 अक्टूबर 2024 के बाद उन्होंने उसे 10% कर दिया। तो जब आप ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो इफेक्टिवली आपका 20% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट डिपॉजिट हो जाता है। बट कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें केवल पेनल्टी की डिमांड है और वो ट्रिब्यूनल में जा रहा है, तो वहां पे फिर 10% एडिशनल ट्रिब्यूनल के आगे जमा कराना पड़ेगा ऑफ द पेनल्टी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। Then there is the next amendment is regarding the under penalty section 1 section they have introduced section 122B. So that is for the track and trace mechanism. जिन लोगों पे track and trace mechanism in the time to come applicable होगा, अगर वो उसमें violation करते हैं तो वहां पे उन पे penalty at least 1 lakh rupees और tax evaded whichever is higher, उस पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये 122B उन्होंने इंसर्ट किया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। देन नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 148A। अगेन वो पूरा प्रोविजन है जो कि ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को गवर्न करेगा। सरकार को पावर दी गई है कि वो नोटिफाई करे ईदर द गुड्स और द क्लास ऑफ पर्संस टू whom these provisions will be applicable and so on। करंटली एज ऑन डेट ये प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे ये नोटिफाइड नहीं है, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। क्वेरी है कि is there any update on GST refund automation on GSTN portal? तो
इस पे सर्कुलर आ गया है, पोर्टल पे अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्लिगेशन प्रॉपर ऑफिसर की है प्रोविजनल रिफंड के रिस्पेक्ट में। मैं उसे डील करूंगा जब मैं सर्कुलर्स को टच अपॉन करूंगा। राइट नाउ आई वाज डीलिंग विद स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स। तो जो लास्ट अमेंडमेंट स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट है जो सीजीएसटी एक्ट में की गई है, वो शेड्यूल 3 में की गई है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। अगर कोई सप्लाई, शेड्यूल 3 में एक नया क्लॉज ऐड किया गया, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अगर कोई सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन वेयर हाउस से या फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है गवर्न्ड बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, वहां से सप्लाई की जा रही है, और या तो एक्सपोर्ट के लिए की जा रही है या डीटीए में क्लियरेंस के लिए की जा रही है, तो जो पर्सन सेल कर रहा है उसकी सप्लाई शेड्यूल 3 में रहेगी। नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इट विल नॉट बी लेविएबल टू टैक्स। और जो आदमी क्लियरेंस करेगा एज इंपोर्ट इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया इनटू इंडिया, वो इंपोर्टर माना जाएगा और उस पे उसको आईजीएसटी देना होगा। लेकिन एट द ट्रांजिट पॉइंट ऑफ सेल सप्लायर के हैंड्स में कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। दे हैव कवर्ड दिस इन शेड्यूल 3। ऑल्दो इस प्रोविजन को 1 जुलाई 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली इंसर्ट किया गया है, बट आई हैव गिवन वी हैव गिवन ओपिनियन इन टू in case of two entities wherein we were saying that this is not leviable to tax, despite of that there was no clear provision under schedule 3. We were covering it in another clause of schedule 3 that goods were cleared prior to clearance from customs, so those goods were not imported goods, and until the goods get cleared into customs frontier of India, they are foreign goods, and at the time of sale, like high sea sale, there is no tax. So we were treating it at par with that type of sale, high sea sale, wherein sale is taking place before the customs frontier of India, before clearance of the customs frontier of India. So we were never paying tax, but they have said that those who have paid tax, वो जिस पे जो टैक्स बेचारा दे देता है उस पे लात पड़ती है, उन्होंने कह दिया है कि हम उसको रिफंड नहीं देंगे। ऑल्दो ये प्रोविजन हम इंट्रोड्यूस 1 जुलाई 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली कर रहे हैं, जो भी सेल एफटीडब्ल्यूजेड से हुई उस पर कोई टैक्स नहीं है, बट अगर किसी ने टैक्स दे दिया है तो उसको रिफंड नहीं दिया जाएगा। ये सेक्शन 137 ऑफ द फाइनेंस एक्ट कहता है। जिन्होंने नहीं टैक्स दिया उनके ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं होगी, या कोई लिटिगेशन है तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स थी जो कि 1 अक्टूबर 2025 से एप्लीकेबल है। मेजरली सेक्शन 34 की अमेंडमेंट है, या एफटीडब्ल्यूजेड से रिलेटेड ये शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट है। इस तरीके से अमेंडमेंट्स है। बाकी बाय एंड लार्ज सारी अमेंडमेंट्स प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स थी। या सेक्शन 107 में अपील टू कमिश्नर अपील में आपको पेनल्टी के रिस्पेक्ट में 10% प्री डिपॉजिट करना है, इसी तरीके से ट्रिब्यूनल में है। यही जो अमेंडमेंट्स हैं, मेजर अमेंडमेंट्स हैं। इसके अलावा जो उन्होंने चेंजेस किए हैं रिसेंटली, कुछ रूल्स में किए हैं, मैं उसको भी टच अपॉन करता हूं, देन आई विल कम टू दी सर्कुलर पार्ट। query as well, we will discuss it. Supply of goods warehoused in a special economic zone or free trade warehousing zone to any person before clearance for exports or to domestic tariff area is treated as supply under GST. No, that is what the amendment is. Before clearance for exports or to the domestic tariff area is included in Schedule 3. The entire wording that you have mentioned, that wording is added in Schedule 3, as a result of which it becomes neither supply of goods. Schedule 3 क्या कहता है? वो एक्टिविटीज जो कि ना की सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी। जीएसटी क्योंकि गुड्स और सर्विसेज पे ही लगता है, तो शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज हैं उस पे जीएसटी की लेवी ही नहीं अराइज होती है। So as a result of this amendment, this activity is now no more leviable to GST since day one of GST. Sir, please confirm rate on bricks is still 6% rate on, नहीं sir, 12% with input tax credit. ये 22 सितंबर 2025 onwards 12% with input tax credit मैं बता देता हूं। ये नोटिफिकेशन है 14/2025 सेंट्रल टैक्स रेट dated 17 September 2025, effective from 22nd September 2025.
फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स, और एक और कैटेगरी है ब्रिक्स और फॉसिल मील्स। ये सारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये 22 सितंबर से 12% पे आ गए हैं, और जो पहले 6% विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसको खत्म कर दिया गया है। हालांकि इनको नोटिफिकेशन को इस तरीके से वर्ड करना चाहिए था कि पुरानी नोटिफिकेशन को रिसेंड कर देना चाहिए था, या सब्सटीट्यूट या ओवरराइड करते, वो उन्होंने नहीं मेंशन किया। बट स्टिल latest notification has to be referred, and accordingly this is the rate with effect from 22nd September 2025. एनी चेंज आईएसडी और क्रॉस चार्ज? आईएसडी और क्रॉस चार्ज में कोई चेंज नहीं है। 1 अप्रैल 25 से आईएसडी हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया है। कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं है। रूल में एक क्लैरिफिकेटरी चेंज है, जहां पे सेक्शन में उन्होंने ऑलरेडी आईजीएसटी में जो रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटीज है उनको कवर कर लिया था, बट रूल में एक जगह केवल सीजीएसटी की रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी मेंशन थी, उसमें उन्होंने आईजीएसटी को भी एड अपॉन कर दिया। क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है इस टाइम पे। मैं अगर रूल्स की बात, हाउ टू अवॉइड आईएसडी जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनी हैविंग 2 ब्रांचेस, सर वेरी सिंपल, आप अपने बिल्स बाइफरकेट करो अगर कर सकते हो तो। अगर आपकी केवल 2 ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हैं और आप आईएसडी को एस्केप करना चाहते हो, तो जिससे भी बिल ले रहे हो कॉमन इनपुट सर्विस का बिल मत लो, आप उसको बाइफरकेट करके लो अगर पॉसिबल है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर से बिल ले रहे हो तो 2 जीएसटीएन का अलग ले लो। अब वो वहां पे कुछ रिजर्वेशंस हैं कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, कि हम एक ऑडिट के रिस्पेक्ट में, एक कंपनी के ऑडिट के रिस्पेक्ट में 2 बिल्स नहीं दे सकते, बट देर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो अगर आपका ऑडिटर इस चीज को एग्री कर रहा है, या जो और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बाइफरकेट करके अपना बिल दे सकते हैं टू दी 2 जीएसटीएन सेपरेटली, तो कॉमन इनपुट सर्विस का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा, एंड यू कैन इजीली एस्केप दैट। रोहित सिदाना जी ने वो कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। यस, पहले 6% विदाउट आईटीसी था 2/2022 की वजह से, अब 14/2025 की वजह से 12% विद आईटीसी है। सो आई थिंक देयर इज नो क्वेरी एज सच। मैं ये कह रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, कि जो नई नोटिफिकेशन आई है उन्होंने पुरानी नोटिफिकेशन को रिसेंड नहीं किया है या सुपरसीड नहीं किया है, वो वर्डिंग्स में प्रॉब्लम है, बट लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैज टू बी रेफर्ड। 13/2025 सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन मेक्स फ्यू अमेंडमेंट्स इन दी सीजीएसटी रूल्स। इसमें डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली जो अमेंडमेंट है वो लॉटरी के केस में है। जो रूल 31A वैल्यूएशन का हुआ करता था फॉर लॉटरी, वो वहां पे जो वर्ड्स थे वो 100/128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट थे। अब क्योंकि 28% को खत्म कर दिया गया और 40% का रेट आ गया फॉर डीमेरिट गुड्स, तो 100/140 कर दिया गया है। इज माई ऑडियो नॉट क्लियर? Is it clear now? Okay, Vinodji said clear. So I'm moving forward. Then the next amendment in the rule is in Rule 39। जैसे कि मैंने कहा कि आईएसडी के रूल 39 में एक इशू था कि सब रूल 2 में सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट मेंशन थे, बट सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट मेंशन नहीं थे, तो वो उन्होंने ऐड कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर एक कॉमन इनपुट सर्विस, फॉर एग्जांपल एक एडवोकेट से आप सर्विस ले रहे हैं जो कि आपकी पूरी कंपनी को पर्टेन करता है, कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच को पर्टेन नहीं करता है, और आप मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, मान लीजिए आपकी ब्रांड नेम के आईपीआर का केस वो लड़ रहा है, तो वो पैन जितने भी आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन है सबको पर्टेन करता है। एक्सक्लूसिवली आप नहीं कह सकते कि किसी एक जीएसटीएन को पर्टेन करता है। दैट इज अ कॉमन इनपुट सर्विस, और एडवोकेट उसका आपको इनवॉइस देता है। तो आपका जिस स्टेट में आपके पास आईएसडी का रजिस्ट्रेशन है उस स्टेट में आपके पास रेगुलर रजिस्ट्रेशन भी होगा, तो वो बिल रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में उसका रिवर्स चार्ज में टैक्स डिस्चार्ज होगा, क्रेडिट लिया जाएगा। फिर वो रेगुलर जीएसटीआईएन आईएसडी को एक बिल रेज करेगा टू पास ऑन द आईटीसी टू आईएसडी, एंड देन दैट आईएसडी विल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑन द एप्लीकेबल टर्नओवर बेसिस टू ऑल द ब्रांचेस। आईएसडी में ये मैकेनिज्म नहीं है कि आप डायरेक्टली रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर सके और उसका क्रेडिट ले सके, इसलिए जो आपका सेम स्टेट में रेगुलर जीएसटी नंबर है वो ये लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा, एक इनवॉइस टू आईएसडी रेज करेगा अंडर रूल 51A, और आईएसडी उस इनवॉइस को एज अ कॉमन इनपुट सर्विस रिसीव करके आगे क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी।
सो देर इज अ टेक्निकल अमेंडमेंट की जो, चाहे वो आईजीएसटी लाइबिलिटी आ रही हो, चाहे सीजीएसटी एसजीएसटी की लाइबिलिटी आ रही हो, दोनों ही केस में ऐसा होगा. Definition of adjudicating authority in CGST does not exclude commissioner, unlike in SGST. Definition exclude commissioner. हाँ तो सर वो, in such a case where does appeal lie against his decision or the statute has not provided any remedy? Ashwin sir, in CGST commissioner can never adjudicate. कमिश्नर इज नॉट एन एडजुडिकेशन अथॉरिटी. आपको कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं मिलेगा जो कि कमिश्नर ने पास किया होगा. ये पुराना सर्विस टैक्स में हुआ करता था या एक्साइज में हुआ करता था कि 2 करोड़ से ऊपर की लाइबिलिटी कमिश्नर ऑर्डर इन ओरिजिनल पास किया करता था और 2 करोड़ से नीचे एसीडीसी पास किया करता था. बट जीएसटी में अगर आप जुरिस्डिक्शन मॉनेटरी वैल्यू नोटिफिकेशन जाके देखेंगे तो वहां पे अप टू 20 lakhs ऑफ जीएसटी डिमांड कैन बी adjudicated by superintendent. OIO will be passed by superintendent. 20 lakh to 2 crore ACDC will pass the OIO and appeal will lie before the joint commissioner appeal. And beyond 2 crore GST demand, OIO will be passed by JC or ADC and appeal will lie before the commissioner appeal. So commissioner is not an adjudication authority in CGST. He can never pass an order. उसको जुरिस्डिक्शन ही नहीं दी गई है. चाहे 200 करोड़ का ऑर्डर पास करना हो, उसको मैक्सिमम एडीसी या जेसी पास करेगा और अपील लाई करेगी कमिश्नर अपील के आगे. कमिश्नर कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता सीजीएसटी में. नेक्स्ट अमेंडमेंट इन द रूल इज विद रिस्पेक्ट टू, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, वो क्वेरी भी आई थी, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं. टू इम्प्लीमेंट द ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड. अब देखिए, प्रोविजनल रिफंड को जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो शुरू से डिस्कस कर लेता हूं. ये कैसे हाईलाइट हुआ, जब 56 काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज आई तो उन्होंने ये कहा कि हम प्रोविजनल रिफंड्स ग्रांट करना शुरू करेंगे और प्रोविजनल रिफंड्स इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी लेके आएंगे. अब प्रोविजनल रिफंड का जो गवर्निंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन है वो सेक्शन 54 सबसेक्शन 6 है. सबसेक्शन 6 ये कहता है कि केवल जीरो रेटेड सप्लाईज के केस में हम प्रोविजनल रिफंड देंगे. प्रोविजनल रिफंड क्या होता है? आपने एप्लीकेशन रिफंड की फाइल करी, डिपार्टमेंट को वो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट लगी, उसने आपको आरएफडी 2 इशू किया, डेफिशिएंसी मेमो नहीं दिया, और आरएफडी 2 देने के 7 दिन के अंदर विदाउट स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन उसको 90% रिफंड ग्रांट कर देना है. तो मीनिंग देयर बाय 15 दिन में वो आपको आरएफडी 2 इशू करता है और उसके 7 दिन के अंदर यानी कि 22 दिन के अंदर आपका 90% रिफंड आ जाएगा अगर कोई डेफिशिएंसी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है. ये प्रोविजन 54(6) में डे 1 से है. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया हुआ, बट इसे डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट ही नहीं करता था. शायद ही कोई ऑर्डर होगा या शायद ही कोई एसएससी होगा जो कि ये कहेगा कि मैं एक्सपोर्टर हूं, जीरो रेटेड सप्लायर हूं या एसईजेड को सप्लाई करता हूं और मुझे प्रोविजनल रिफंड डिपार्टमेंट ने 22 दिन के अंदर 90% दे दिया. कोई नहीं देता. अब जब ये बात 56 काउंसिल मीटिंग में आई तो ये हाईलाइट हुई कि ये कह रहे हैं कि इनको प्रोविजनल रिफंड दिया जाएगा और साथ ही साथ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी ये लाया जाएगा. तो उन्होंने अब एक रूल में तो इम्प्लीमेंट एक अमेंडमेंट की ही कि रूल में तो बेसिक इम्प्लीमेंट है, अमेंडमेंट है कि वो कौन सा फॉर्म इशू करेगा प्रोविजनल रिफंड को ऑर्डर को देने के लिए. आरएफडी 04 इशू करेगा. और अगर ऑफिसर को ये लगता है, वहां पे ये भी है कि उसको सिस्टम बताएगा कि ये रिस्क बेस्ड एप्लीकेशन है या रिस्क बेस्ड असेसी है या नहीं है. अगर सिस्टम नहीं बताता है तो ऑफिसर के पास भी पावर है कि वो टू बी फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग वो किसी की भी प्रोविजनल रिफंड को मना कर सकता है. तो पहली बात, प्रोविजनल रिफंड दिया जाएगा. कब दिया जाएगा? जब सिस्टम ये इवैल्यूएट करके बताएगा कि ये असेसी रिस्क बेस्ड असेसी नहीं है, तब दिया जाएगा. लेकिन एक डिस्क्रिशन एडिशनल प्रॉपर ऑफिसर के पास है कि सिस्टम कह रहा है कि नहीं रिस्क बेस्ड नहीं है, but still proper officer for reasons to be recorded in writing can stop the provisional refund and scrutinize the whole application and thereafter pass a refund order. Third, even government has the power to notify the cases where provisional refund will never be given. वो भी उन्होंने कर दिए. नोटिफिकेशन ले आए कि अरीका नट्स और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स में प्रोविजनल रिफंड नहीं दिया जाएगा अगर इनका एक्सपोर्ट करते हो तो, क्योंकि वो रिस्क बेस्ड कैटेगरीज हैं.
तो इस तरीके से प्रोविजनल रिफंड की ये कहानी है जीरो रेटेड सप्लाई के केस में। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में उन्होंने कह तो दिया 56 काउंसिल मीटिंग में, और रिसेंटली 2 दिन पहले एक इंस्ट्रक्शन भी इशू कर दी। बट क्वेश्चन ये है डिपार्टमेंट के आगे कि 54(6) जो पेरेंट प्रोविजन है, क्या उसके उसमें तो ये प्रोविजन ही नहीं है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में रिफंड प्रोविजनल दिया जाएगा। तो डिपार्टमेंट उसे कैसे एंटरटेन करेगा कि प्रोविजनल रिफंड दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? हालांकि बेनिफिशियल है, जो इंस्ट्रक्शन आई है वो भी बेनिफिशियल टू असेसी है, तो असेसी तो चैलेंज करेगा नहीं। और डिपार्टमेंट की अगर मंशा होगी, अगर ये उनका इंटेंट होगा कि प्रोविजनल रिफंड्स देने हैं, तो वो आपको प्रोविजनल रिफंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी 90% विद इन 7 days ऑफ योर एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन देंगे। बट पोर्टल पे ऐसा कोई अभी अमेंडमेंट नहीं है, वो आपको पोर्टल पे जिस तरीके से फाइल करते थे उसी तरीके से फाइल करनी है एप्लीकेशन, और ऑफिसर के पास फुल डिस्क्रिशन है। पहली बात तो उसे सिस्टम बताएगा कि ये रिस्क बेस्ड असेसी है या नहीं है। अगर रिस्क बेस्ड असेसी है तो प्रोविजनल रिफंड नहीं ग्रांट होगा, अगर नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर खुद ये डिसाइड करेगा कि मैं इनको दूं या फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग नहीं दूं। अब वो सब आप जानते हैं कि रिफंड हिंदुस्तान में कैसे मिला करते हैं, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। Can provisional refund be taken back by the department? Yes, absolutely. If at the time of finalization of the refund application, the department finds that they have given you excess refund or wrong refund and entire amount is recoverable from you or partial refund is recoverable from you, they will recover from you along with interest from the date of payment till the date of recovery, and that too at 18%. डिपार्टमेंट आपको डिलेड रिफंड का इंटरेस्ट 6% देता है, लेकिन आपसे 18% लेगा, तो वो सिनारियो कवर्ड है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूल में एक अमेंडमेंट है, प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, कि जब आप एप्लीकेशन अपनी अपीलेट, अच्छा एक चीज, जब मैं अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं तो अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो फाइलिंग्स होंगी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की, वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक होंगी। आपको एक्नॉलेजमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी। जब आप एप्लीकेशन अपील फाइल कर देंगे फॉर्म एपीएल 04 में, तो इमीडिएटली आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी, और अगर उस ऑर्डर की कॉपी पोर्टल पे अपलोडेड है तो फाइनल एक्नॉलेजमेंट भी सिस्टम आपको ग्रांट कर देगा। लेकिन अगर उसकी ऑर्डर की कॉपी, जो इंप्यूग्ड ऑर्डर इन अपील है, जो आपको जेसी अपील या कमिश्नर अपील ने पास करके दिया, अगर उसकी कॉपी पोर्टल पे अपलोडेड नहीं है, तो फिर 7 days फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ट्रिब्यूनल में जाके सबमिट करनी होगी। अगर वो उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक अपलोडिंग की फैसिलिटी आएगी तो इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करनी पड़ेगी सर्टिफाइड कॉपी, एंड देन दे विल ग्रांट यू अ फाइनल एक्नॉलेजमेंट। तो फाइनल एक्नॉलेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तक फाइनल एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी तब तक अपील फाइल्ड नहीं मानी जाएगी। अपील फाइल्ड तभी मानी जाएगी जब फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि द मोमेंट यू हैव फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली द अपील एंड प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इज जनरेटेड and your order is uploaded on the portal, then the date of final acknowledgement will always be the date of provisional acknowledgement itself. तो जो पोर्टल फ्यूचर डेट में फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू करेगा, उसमें जो डेट होगी वो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट की डेट होगी जिस दिन आपने अपील अपलोड करी थी, मीनिंग देयर बाय आपकी अपील डिले नहीं होगी। लेकिन जिन केसेस में आप ऑर्डर अपलोडेड पोर्टल पे नहीं होगा, वहां पे ये जरूर इंश्योर कर लीजिएगा कि आप अपील ट्रिब्यूनल में ऑर्डर सबमिट कर दें अपनी सर्टिफाइड कॉपी, अदरवाइज अपील में डिले हो सकता है, क्योंकि उसकी फाइनल एक्नॉलेजमेंट की डेट वो डेट होगी जिस दिन आप ऑर्डर सबमिट करेंगे फिजिकली। अगर 7 दिन के अंदर करेंगे तो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट की डेट, अगर 7 दिन के बाद करेंगे तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दैट ऑर्डर। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। इसी तरीके से इन्होंने एक नया रूल इंसर्ट किया है। जो लोग अपीलेट ट्रिब्यूनल की प्रैक्टिस करते हैं वो वाकिफ होंगे सिंगल मेंबर बेंच, डिवीजन बेंच से। तो सिंगल मेंबर बेंच का प्रोविजन है सेक्शन 109 सबसेक्शन 8 में, जहां पे कि जो अपील्स अप टू 50 लाख ऑफ अमाउंट तक की हैं, जिसमें डिस्प्यूट, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी सब कुछ मिलाकर के 50 लाख तक की है, और उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है, तो वो अपील सिंगल मेंबर बेंच सुन सकता है। उसकी डिसीजन जो होगा वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट बेंच लेगा। उसके लिए एप्लीकेशन असेसी भी फाइल कर सकता है या प्रेसिडेंट
ऑफ द प्रिंसिपल बेंच या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट बेंच खुद सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस लेकर के मैटर को सिंगल मेंबर बेंच के आगे प्लेस कर सकते हैं। लेकिन बाद में जाके अगर सिंगल मेंबर बेंच ये आइडेंटिफाई करती है कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो फिर वो वापस अपील आपके प्रेसिडेंट या स्टेट प्रेसिडेंट को भेज देंगे, जहां पे कि वो रिकंसिडर करेंगे कि ये डिवीजन बेंच के आगे लगाई जाए। तो इस तरीके से प्रोसीजर है जो उन्होंने रूल 110 ए में प्रिस्क्राइब किया है। रेस्ट देयर इज ओनली जब इंपॉर्टेंट चेंज है वो जीएसटीआर 9 और 9C के फॉर्म्स में चेंज है, जहां पे कि अभी तक हम कुछ चीजें ऐसी थी जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स थे उनको रिपोर्ट नहीं कर पाते थे, इस फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर किया वो तो टेबल 11-13 में रिपोर्ट हो जाता था। बट करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रीवियस ईयर में जो इफेक्ट ले चुके हैं, मतलब इस साल का पिछले साल में जो हमने अगर कुछ कर दिया था, तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए वो नए टेबल्स कॉलम्स लाए हैं। आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट डिटेल, वो आप फॉर्म देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 13/2025 है। और जो रूल अमेंड किया है 9 के रिस्पेक्ट में, जो फॉर्म अमेंड किया है वो इसी नोटिफिकेशन में अपेंडेड है, सो दैट यू कैन सी। आई विल क्विकली मूव टू दी सर्कुलर्स। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सीडेड टाइम एंड देयर आर फ्यू क्वेरीज एज वेल, but first I will like to take up the circular because query seems to be repetitive। जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर 56 काउंसिल मीटिंग के बाद आया और जिसने मेजर लिटिगेशंस को खत्म किया, पहला, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट अगर आपको आपका सप्लायर इशू कर रहा है तो रेसिपिएंट को क्रेडिट रिवर्स नहीं करना है। आई एम रिपीटिंग, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मींस कि उसने उस क्रेडिट नोट की जीएसटी की एडजस्टमेंट नहीं ली है, आपको केवल वैल्यू वैल्यू का क्रेडिट नोट इशू किया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ना तो वो क्रेडिट नोट जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट हुआ है, ना ही टैक्स लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट सप्लायर ने ली है। ऐसा जो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट होता है या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट जिसे सर्कुलर ने बोला, उस पे बायर को क्रेडिट रिवर्स नहीं करना। डिपार्टमेंट एक व्यू ले रहा था कि क्योंकि आपने उसको डिस्काउंटेड वैल्यू पे करी है, तो कई केसेस में वो कह रहे थे कि 180 डेज वाले प्रोविजन की लैप्स है, या कई केसेस में वो कह रहे थे कि क्रेडिट नोट पे रिवर्स करना है, तो वो गलत है। तो बोर्ड ने अब सर्कुलर ला दिया कि कॉमर्शियल क्रेडिट नोट, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पे कोई क्रेडिट का रिवर्सल नहीं होगा बाय द बायर। सेकंड क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस सर्कुलर नंबर 251 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी हमारे पास खुद शो कॉज नोटिस है रेंजिंग इनटू क्रोर्स, जहां पे कि डीलर्स को मैन्युफैक्चरर से पोस्ट सेल डिस्काउंट रिसीव हुए, प्रमोशनल डिस्काउंट्स, और डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ये एक सेपरेट कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर एन इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द डीलर टू द मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना ये केस डिस्कस कर लेता हूं। भागीरथ पैलेस में एक डीलर है हैवेल्स का, जो कि हैवेल्स से परचेज करता है और आगे मार्केट में सेल करता है। अब वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे एक रेट पे परचेज करता है, अपने मन चाहे रेट पे बेचता है। लेकिन हैवेल्स कुछ स्कीम्स यूनिलैटरली ऐसी प्रपोज करता है कि भाई अगर मुझसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मॉडल इतना परचेज कर लोगे, उसकी क्वांटिटी एक्सीड कर लोगे, या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ला करके दोगे, या फिर टोटल टर्नओवर टारगेट अचीव कर लोगे, टारगेट इंसेंटिव जिसे बोलते हैं, या फिर पेमेंट जल्दी कर दोगे फ्रॉम दी क्रेडिट साइकिल, कैश डिस्काउंट, तो इस तरीके के डिस्काउंट मैं आपको इंसेंटिव्स दिया करूंगा। आज मैं आपको मटेरियल एक एक्स रेट पे सेल कर रहा हूं, बट कल मैं आपको क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा अगर आप ये मेरा टारगेट अचीव कर लोगे। तो डिपार्टमेंट वहां पे शो कॉज नोटिस कर रहा था इन डीलर्स को कि ये कंसिडरेशन है जो वो क्रेडिट नोट आपको आया फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी बाय द डीलर टू द मैन्युफैक्चरर। Board has clarified that this is a principal to principal transaction. The dealer is purchasing more and more of quantity. The dealer is purchasing more and more of quantity to fulfill his more and more sale, to increase his own turnover, and not to provide any additional service to the manufacturer. So there cannot be any additional GST on that amount which is being received from the manufacturer to that dealer. So this is the clarification they have given. Welcome clarification. Many of the show cause notices. In fact, there is a case pending before Delhi High Court in which the Delhi High Court has stayed the demand by putting up a remark. Justice Pratibha M. Singh has put up a remark that how can that amount which is coming as a post-sale discount by meeting a target can be treated as a consideration for an independent supply by the dealer to the manufacturer. So that those cases will now go away. Then the next clarification is with respect to
The next circular is circular number 253, which I've already discussed. They are withdrawing circular 212, which said that you have to take CA certificate from the buyer that he has reversed the credit to prove unjust enrichment, to take liability of adjustment, to take adjustment of liability on the credit note that you have issued to the buyer. तो वो उन्होंने सर्कुलर रिवर्स विड्रॉ कर लिया है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब डिपार्टमेंट आप पे ये इम्पोज नहीं कर पाएगा कि सीए सर्टिफिकेट ला करके दो। किसी भी बेसिस पे अगर आप प्रूव कर देते हैं कि रेसिपिएंट ने क्रेडिट या तो रिवर्स कर दिया है या लिया ही नहीं है, चाहे वो उसकी खुद की सेल्फ डिक्लेरेशन हो, डिपार्टमेंट को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड 34(2) प्रोवाइजो 2 to 34 इज ऑलरेडी देयर। तो उन्होंने ये सर्कुलर विड्रॉ कर लिया है जो एक हार्श मेजर लेकर के आया था। Then there is another circular with respect to DIN number। उन्होंने जो सीबीआईसी ऑफिस से नोटिस कोई इंफॉर्मेशन लेटर इशू होता है तो उस पर इशू नंबर होता है, डिन नंबर अलग से जनरेट करना पड़ता था, बट उन्होंने ये कहा कि इशू नंबर को वेरीफाई करने की यूटिलिटी हम पब्लिक डोमेन में दे देते हैं, तो अब इन पे डिन नंबर नहीं इशू हुआ करेंगे। इस तरीके से है। एक और जो अब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो अपील्स फाइल होंगी, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, जो ऑर्डर इन अपील 1 मार्च 2016 से 2026 से पहले तक के होंगे, जो ऑर्डर इन अपील 1 मार्च 2026 से पहले की डेट के होंगे, इंक्लूडिंग 28 फरवरी 2026, उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील आप 30 जून 2026 तक फाइल कर सकते हो। गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है डेट 30th June 2026 would be the last date to file appeal before GST appellate tribunals for orders issued and served up till 28th of February 2026। तो आपको चाहे ऑर्डर्स वो इशू हो चुके हो या आज के बाद इशू हो, बट 28 फरवरी 2026 तक के ऑर्डर के अगेंस्ट आप 30 जून 26 तक ऑर्डर पास कर अपील फाइल कर सकते हो। इसके बाद जो 1 मार्च 2026 से ऑर्डर इशू होंगे उनके ऊपर एज पर लॉ 3 महीने की टाइम लिमिट अप्लाई हुआ करेगी। सो दे हैव नोटिफाइड दिस डेट ऑफ 30th June 2026 एज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग अपील अंडर सेक्शन 112 सबसेक्शन 1। नाउ अ टेक्निकल पॉइंट कम्स कि कॉन्डोनेशन का जो प्रोविजन 112 में है ऑफ अनदर 6 months वो अवेलेबल होगा। तो जी हाँ, वो अवेलेबल होगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये 112(1) के अंडर है। 112(1) की जो टाइम लिमिट है उसको सरकार ने 30 जून 2026 नोटिफाई किया है। जो कॉन्डोनेशन का प्रोविजन है वो सेपरेट प्रोविजन है, वो वैलिड रहेगा। आप 30 जून 26 के बाद कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन के साथ फाइल कर पाओगे, बट दोज रीजन शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड एंड सैक्रोसैंक्ट। देयर शुड बी अ जस्टिफाइड रीजन। एक और जो बात करें, पोर्टल, गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज जब 56 काउंसिल मीटिंग की आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम सितंबर के एंड से पहले ही ओपन कर देंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए। तो ई जीएसटी फाइलिंग पोर्टल है जिसमें आप जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हो, बट क्योंकि एनआईसी ने ये कहा कि इस पोर्टल की अभी अपनी लिमिटेशंस हैं, कैपेसिटी एक्सीड हो सकती है, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ अपील्स, तो उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया प्रेसिडेंट ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल में कि लोग जो प्रोफेशनल्स हैं इसको स्टैगर्ड फेज में यूज करें। उन्होंने एक टाइमलाइन निकाली है। आप 30 जून 26 तक तो कर ही सकते हैं, बट अगर उससे पहले करना चाहते हैं तो उन्होंने एक डेट रेंज दी है कि अगर आपका ऑर्डर 30 जनवरी 2023 तक का है तो आप 24 सितंबर से इस डेट तक कर लें, फिर उसके बाद का है तो इस डेट ऑनवर्ड्स करें। इस तरीके से स्टैगर्ड फेज में आप अपील फाइल करें। एनीवेज आप 30 जून 2026 तक कभी भी फाइल कर सकते हैं। तो ये जो अपीलेट टर्मिनल के रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन थी विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ अपील। प्रेस रिलीज ने ये भी कहा कि बाय द एंड ऑफ December 2025 दे विल स्टार्ट हियरिंग द अपील। सो द ट्रिब्यूनल विल स्टार्ट सिटिंग फॉर हियरिंग द अपील्स। Hopefully in Delhi, the principal bench, the principal bench will start, and in other states also it will soon start. So 30 दिसंबर 2025 से पहले प्रिंसिपल बेंच तो स्टार्ट हो जाएगी, जैसा उन्होंने प्रेस रिलीज में अपनी कहा। अब मैं क्वेरीज ले लेता हूं। रूबी कुमारी जी की क्वेरी है कि व्हेन इज द रिमेनिंग 10% रिफंड यूजुअली रिलीज। मैम, एज पर सेक्शन 54 डिपार्टमेंट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू dispose of your refund application within 60 days from the date of filing of your application.
These 60 days period include everything: issuance of acknowledgement, then issuance of provisional refund, and then issuance of final order. तो 60 दिन के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए. बट प्रैक्टिकली जिन केसेस में नहीं होता है, वहां पे आप बाय लॉ सेक्शन 56 में इंटरेस्ट के लिए इंटाइटल्ड हो फ्रॉम 61st डे टिल द डेट ऑफ क्रेडिट टू योर अकाउंट. और जहां पे डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, रिफंड नहीं दे रहा है, तो रिट पिटिशंस आर डेली बीइंग फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट. एंड हाई कोर्ट हैज कम वेरी स्ट्रिक्ट दैट वंस यू हैव, in fact there is a judgment order of Delhi High Court itself, that if you have passed the period of 60 days, now you cannot issue a show cause notice, you have to grant that refund. So as per law, within 60 days order has to be passed. With this, I have completed my part, my deliberation. If any query is there, we can discuss it. Or let me सिद्धांत जी, आपने recheck. क्वेरीज तो ले ली हैं, आई थिंक. स्टिल एनी क्वेरी रिमेनिंग, आई विल टेक अप. कोई किसी की क्वेरी अगर रहती है फर्दर, यू कैन पोस्ट सो दैट वी कैन टेक अप बिफोर क्लोजिंग. ज्यादातर जो क्वेरीज हैं वो प्रोविजनल रिफंड को लेकर के हैं. अब वो एक इंटरेस्ट तो एक्साइट कर दिया है गवर्नमेंट ने कि हम प्रोविजनल रिफंड देंगे, बट ओनली टाइम विल टेल हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड. हमें पता है रिफंड कैसे मिलते हैं. तो अगर प्रॉपर ऑफिसर की एक ठीक मंशा होगी कि नहीं भाई प्रोविजनल रिफंड देने हैं, तो वो देंगे. जिन jurisdictions में देर आर गुड ऑफिसर्स, दे विल गिव इट. Otherwise, the proper officer can, for reasons to be recorded in writing, he can not issue you a provisional refund. So that discretion has been given to the proper officer. The session on GSTR 99C. ये शायद ये सेशन अंकित जी लिया करते हैं शायद कासा पे ना, GSTR 99C का. तो ये सेशन करा सकते हैं. मैं अभी, प्रोसीजरल हाँ, थोड़ा सा अभी देखता इसको हूँ तो प्लान मैं. नवंबर में करेंगे. अक्टूबर में तो वी कैन नॉट होल्ड. और बेनिफिशियरी सर्कुलर इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिव. सही, ये बेनिफिशियरी सर्कुलर इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिव और ये मैंने कर रेस्पेक्टिव. दिया मैंने अश्विन जी का. ऊपर अगर कोई क्वेरी रह गई है, आई थिंक नॉट. एक क्वेरी जो हालांकि एड्रेस हो चुकी है कई सारे फोरम्स पे, कि 22 सितंबर से पहले मैंने सप्लाई करी और 12% जीएसटी रेट पे सप्लाई करी, या 28% जीएसटी पे सप्लाई करी, बट उसका रिटर्न हो रहा है 22 सितंबर के बाद. तो क्या क्रेडिट नोट मैं नए रेट से करूं या पुराने रेट से करूं? देखिए बहुत लॉजिकल है. आपने जब सप्लाई करी थी तो जो टैक्स बियर किया था, अगर सप्लाई रिटर्न हो रही है, तो गवर्नमेंट इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिटेन एनी अमाउंट ऑफ टैक्स जस्ट बिकॉज दे हैव रिड्यूस्ड टैक्स ऑन दैट कमोडिटी. तो जब सप्लाई हुई, सरकार इंटाइटल्ड थी टैक्स कलेक्शन के लिए. जैसे ही सप्लाई रिटर्न हुई, सप्लाई गवर्नमेंट लॉस्ट द राइट टू रिटेन दैट टैक्स. यू हैव टू इशू द क्रेडिट नोट बाय फुल रेट दैट वाज लेविड ऑन द इनवॉइस. तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रेडिट नोट पुराने रेट से ही बनेगा. चाहे सेल रिटर्न हो, चाहे रेट की रिडक्शन हो ऑन अकाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, कुछ भी हो, क्रेडिट नोट पुराने रेट पे, जिस जो टैक्स सरकार को डिस्चार्ज किया था, एडजस्टमेंट आपको उसी रेट से मिलेगी. हाँ, कुछ सिनारियो ऐसे क्वेरीज आती हैं कि सर मैंने सप्लाई तो 22 सितंबर से पहले कर दिया, बट इनवॉइसिंग और पेमेंट बाद में हो रही है. तो वहां पे आपको सेक्शन 14 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. तीन इवेंट्स हैं: डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट. तीन में से दो इवेंट अगर 22 सितंबर से पहले हैं तो पुराना रेट. तीन में से दो इवेंट अगर 22 सितंबर के बाद के हैं तो नया रेट. वो सेक्शन काफी बड़ा है, सेक्शन 14. लेकिन आप उसे अगर पेन पेंसिल लेकर के बैठेंगे तो जट का फॉर्मूला यही है कि तीन में से दो इवेंट, मेजोरिटी रूल, थंब रूल चलता है उसमें. तीन में से दो इवेंट पहले तो पुराना रेट, तीन में से दो इवेंट बाद में तो बाद का रेट. तीन इवेंट क्या है? डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट. तो सिद्धांत जी, क्लोज करते हैं आज का सेशन. ऑलरेडी यू हैव कवर्ड ऑल queries and discussion points. So with this, a great session as always and wonderful coverage of the topic.
So thanks to all Thank you. participants for your patient listening and understanding on the subject. And a special thanks to Siddhant Pathak ji for your precious time and discussion. So we can see this recording. We'll share the recording to other participants for viewing later. So thank you once again, Siddhant bhai, and thank you all for joining. Thank you. Thank you. Thank you.